वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। Acha, all the teachers are constantly embodiments of knowledge and embodiments of remembrance. Just as the Father comes as the teacher, so too you are instrument teachers. The same as Father. You are not like the Father, but you are instrument teachers. So, the specialty of teachers is that they have the feeling of being an instrument. And of being humble. A successful teacher is one who has a pure and clean nature. Now, especially underline having a pure and clean nature. No matter what happens, your nature should always remain pure and clean. This pure and clean nature is a sign of humility. So now underline a pure and clean nature. Completely cool. The praise of coolness is remembered in the form of the goddess of coolness. To have a pure and clean nature means to have a cool nature. The situation may be one that has force, but if you remain pure and cool, you would then be called a successful teacher. So what is Bap Dada making you underline even now? A pure and clean nature. Do you understand? Acha. Child, I am always with you.
Om Shanti. Transformation of old sanskars and old nature. Surrender the attitude of waste and wasteful vibrations. Some children make an effort and make their aim and qualifications equal according to the time, circumstances, and problems. However, extra attention now needs to be paid to make this natural and part of your nature. Whether you become an avyakt angel or incorporeal, the main basis of making these stages your constantly natural nature is to become egoless. In order to do this, surrender the attitude of waste and wasteful vibrations, and you will become a natural yogi who has an angelic nature. Now transform the old nature and old sanskars. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today is day 19. Transformation of old sanskars and old nature. Today's topic is surrender the attitude of waste and wasteful vibrations. Now we will listen to Vani Didi. Om Shanti, everyone. Everyone, okay? Doing well? Happy to make efforts for the transformation of nature and sanskars. When we pay attention for the dharana and keep aim, and also pay attention to the attributes equal. Not only just have aim, but qualifications, the qualities of that aim should be equal. Sometimes we have aim, but we are not able to match it with our qualifications. But what Baba wants, that it should become very natural nature. And for that, more attention is required. These days, everyone has just one thought, that we are very busy, we don't have time. But कि हम बहुत व्यस्त है, समय नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये समय का अभाव यह प्रश्न नहीं उठता. हमें सिर्फ बैलेंस रखना है. हमें जैसे कि जीवन में वो इंटीग्रेट करना है कि ये मेरा लक्ष्य है.
बैलेंस रखे, how to make our परंतु साथ साथ attributes equal. कैसे हम हमारा लक्ष्य और लक्षण समान रखें। More attention बाबा कहते हैं when सिर्फ उसके लिए ज्यादा अटेंशन चाहिए। not really जब question of balance, अटेंशन होता है integrate तो सिर्फ वो बैलेंस का प्रश्न नहीं है, परंतु हम इंटीग्रेट करते हैं हमारे कर्म में। जब हम कर्म करते हैं तो हमारे स्वभाव के ऊपर हम सिर्फ अटेंशन रखते हैं, तो हम टेंशन न रखें। कभी कभी नहीं होता है तो हम टेंशन करते हैं, तो इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन आता है और हमारी स्थिति फ्लक्चुएट होती है, हलचल में आती है और बहुत ही व्यर्थ विचार आते हैं। तो बाबा कहते हैं जब आपका अटेंशन होगा तो आपका फरिश्ते की स्थिति होगी, और इस निराकारी स्थिति में निरंतर रहने के लिए वो नेचुरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। फरिश्ता स्थिति अर्थात हमारी जो हमारे जो गुण है, जैसे कि दया भाव, केयर करना, शेयर करना, उसको इमर्ज रखना। तो ये जो गुण है वो हमारे अटेंशन में हो तो हम बहुत ही हल्कापन अनुभव करेंगे। और जैसे कि ये उड़ती कला की स्थिति है, दूसरी भाषा में कहे तो यह एक फरिश्ते की स्थिति है, अव्यक्त स्थिति है। क्योंकि अव्यक्त स्टेज में जो बाहर की परिस्थिति है और किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम और मुश्किलें हैं, वो हमारी स्थिति को अफेक्ट ना करे। हमें पता है कि कुछ न कुछ परिस्थितियां होती है, परंतु हमारा मन उस परिस्थिति से प्रभावित न हो, उसके प्रभाव में न आ जाए। कोई भी परिस्थिति हो सकता है, परिस्थिति हमें एक मुश्किल जैसा लगे, प्रॉब्लम जैसा लगे, विघ्न लगे, परंतु हम इस विघ्न को विघ्न की तरह न देखें। और एक मुख्य अभ्यास जो है वो है निराकारी स्थिति को स्थिति में लाना, अर्थात आत्मिक स्मृति का स्टेज। तो समय प्रति समय बीच बीच में अगर आप थोड़ा पॉज करके थोड़े पल के लिए, थोड़ी मोमेंट्स के लिए, और आप इसका अभ्यास करें कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं निराकारी हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। कभी कभी हमारी बुद्धि में सब कुछ पता होता है, हमें पता भी होता है कि क्या करना है, तो जानना अलग बात है और व्यवहार में प्रैक्टिकल में करके दिखाना वो अलग बात है। और कभी कभी ज्ञानी आत्मा, उसका एक विचार हो सकता है कि मुझे पता है, परंतु आत्मिक स्मृति में रहना वो सिर्फ जानना नहीं है, परंतु उसका अभ्यास करना है। खुद को बार बार रिमाइंड कराना कि हम अमर आत्मा है, इटर्नल है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जितना मैं इसको इमर्ज करता हूँ, मेरी ओरिजिनल पहचान को, तो दूसरी भाषा में, दूसरे शब्द में कहे तो
हमारी जो व्यर्थ वृत्ति है, व्यर्थ वाइब्रेशन है, will be completely surrendered. वो जैसे कि स्वाहा हो जाएंगे One becomes natural yogi. और वो And in वो आत्मा एक सहज योगी बन जाएगी। now when there are circumstances, जब कभी कभी परिस्थिति आती है instead of going beyond, तो हम परे जाने से पहले हम एनालिसिस करने लगते हैं, क्यों ऐसा होता है, इसकी वजह से ऐसा हुआ, क्या मेरी वजह से ऐसा हुआ, ऐसे बहुत सारे व्यर्थ विचार आते हैं। परंतु उस समय हमें ध्यान रखना है, फोकस रखना है। जैसे कि टेक्नोलॉजी है, कभी कभी टेक्नोलॉजी कार्य नहीं करती है जब हम चाहते हैं, तो हम एकाग्रता से चेक करें कि क्या हुआ, तो हम ढूंढ सकते हैं क्या हुआ और हम उसको फिक्स कर सकते हैं। anyway, परंतु जब हम फिक्स करते हैं तो दूसरों को शायद व्यर्थ विचार आ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हर समय ऐसा हो रहा है। परंतु ये जो ऊर्जा है वो व्यर्थ हो जाती है, व्यर्थ विचार की। परंतु जो अटेंशन रखता है वो कभी भी समय वेस्ट नहीं करेगा, परंतु फोकस करके उसको सॉल्व करेगा, इसका निवारण लाएगा। तो हमें सॉल्यूशन को वर्कआउट करना है, कारण का निवारण करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करना। तो ये सिर्फ एक बार का पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन हर समय। तो उस समय हम हमारी फरिश्ती स्थिति को इमर्ज करें, निराकारी स्थिति को इमर्ज करें। आप बाबा को भी याद कर सकते हैं अंदर से, आत्मिक स्मृति में बाबा को याद करना। तो बाबा हमें युक्ति क्या दे रहे हैं कि हमें फरिश्ता स्थिति को बनाना और निराकार स्थिति को बनाए रखना। जब हम अंदर से यह ध्यान रखते हैं, इस स्थिति को बनाते हैं, तो हमारे जो वाइब्रेशन है, प्रकंपन है फरिश्ता स्थिति के, वो हमारे पास सही चीजें अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। क्योंकि जो हमारे विचार है, हमारे वाइब्रेशन है और वातावरण जो है वो भी व्यर्थ का हो जाता है। तो जैसे भारी हो जाता है, बहुत इरिटेशन होता है और हम हमारी हिम्मत को खो देते हैं। तो आप सोचो किस प्रकार के वाइब्रेशन होंगे। तो बाबा कहते हैं जो भी समय है, जो भी परिस्थिति है, जो भी कुछ हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप अपनी स्टेज को स्थिति बनाने में व्यस्त रहो। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम क्यों ऐसा नहीं, ये सोचने के जगह, क्योंकि वो व्यर्थ है। तो बाबा की मदद जो है वो मिलेगी जब हम फरिश्ता स्थिति में हैं, बहुत सारा सहयोग मिलेगा। मैं सोचती हूँ कि एक हमारा स्वभाव और दूसरा प्रकृति के एलिमेंट जो है वो हमें सहयोग देंगे। तो बाबा ने ये भी कहा, आज आपका स्वभाव बहुत शांत रखो, कूल रखो, काम रखो, बहुत निर्माण रखो। तो हमारी जो स्मृति है वो हमें बना के रखनी है, उसकी पालना करनी है, सस्टेन करना है। हमारी बुद्धि जो है वो कार्य में चली जाती है। और तो मैं समझती हूँ कि कार्य में एकाग्रता चाहिए, परंतु अंदर की जो अवेयरनेस है, स्मृति है कि मुझे
ये बनना है, मुझे शांत रहना है, मुझे निर्माण चित्त रहना है, मुझे निमित्त बन के रहना है, ये स्मृति में रहना है अंदर से। ये सारे अभ्यास जो है वो बहुत ही महत्व के हैं। तो मुझे आशा है कि हमारा यह होमवर्क हम करेंगे और हम प्रयोग करेंगे कि कैसे ये फरिश्ता स्थिति मुझे मदद करती है, क्योंकि हमें बाहर की परिस्थिति भी रिजॉल्व करनी है, परंतु मेरी जो यात्रा है उसके बारे में क्या। तो मेरा जो आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस है, उसका क्या। तो हम लक्ष्य रखते हैं, परंतु व्यवहार में हम इतना नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ज़्यादा अटेंशन चाहिए। तो मुझे आशा है कि अगर हम अटेंशन रखेंगे तो सफलता का अनुभव होगा और वो हमें मदद करेगा और ज़्यादा हिम्मत और इंटरेस्ट बढ़ाने में, खुद पर विश्वास करने में। हाँ, मैं कर पाऊंगी। तो मुझे बहुत ये प्यारा लगा कि ये मन में रखना, कि यह स्मृति रखना, ये बहुत ही महत्व का है। ओम शांति। Om Shanti, everyone. Om Shanti. After homework reading, we will have Brother Ken session. ब्रदर कैन का सेशन होगा बाद में। Transformation of all sanskars. पुराने संस्कार और स्वभाव का परिवर्तन, व्यर्थ वृत्ति और व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करना। कई बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, परंतु समय प्रमाण, सर्कमस्टेंस प्रमाण, समस्या प्रमाण। लेकिन यह नेचुरल और नेचर हो जाए, उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। चाहे आकारी फरिश्ता, चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार है निरअहंकारी बनना। इसके लिए व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा कर दो, तो नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हो। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti Avyakti Parivar. So ओम today शांति we अव्यक्ति have परिवार। some तो आज हम Brother Ken will be with us. So we'll have this session. हम भाग्यशाली है, कैन भाई हमारे साथ है। Tomorrow तो is उससे Sunday. पहले हम कल का Amrit स्केड्यूल Vela देखेंगे। 3 to 4:45 रविवार p.m. अमृत meditation वेला 3:30 6 बजे, p.m. मेडिटेशन Thursday 6 is बजे Sankirtan शुरू 8 होगा। उसके p.m. बाद साकार हिंदी and मुरली, meditation Bhoga उसके offering बाद English मेडिटेशन और offering भोग ऑफरिंग इंग्लिश अव्यक्त मुरली 6 p.m. शाम को Spot 6 बजे light dृष्टि मेडिटेशन, sharing उसके and बाद Yoga स्पॉटलाइट English दृष्टि शेयरिंग, उसके बाद series मेडिटेशन Bhagavad होगा और Gita फिर इंग्लिश सीरीज मोहिनी दीदी के साथ, और फिर होमवर्क एंड अव्यक्ति जर्नी। Welcome to Avyakti तो अभी Journey, living and serving. कैन भाई को Love and family. वेलकम करते हैं, स्वागत Welcome, करते हैं। Brother Angel, Brother और विषय है ब्राह्मण परिवार को सर्व करना। ओम शांति। बहुत ही आनंद होता है यहाँ पर उपस्थित होने में। मैं अभी मैक्सिको में हूँ, रिट्रीट में, और तो सिस्टर मोइरा वगैरह यहाँ पर लंदन से आए थे, और
अव्यक्ति परिवार को, सभी फैमिली मेंबर्स को एक बड़ा ग्रीटिंग्स है। तो ये बहुत ही एक सुंदर बात है, बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि हम निमित्त है। That I'm extracting some of तो these कुछ एक लीडरशिप कोर्स है, उसमें से कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। और हम बाबा की सेवा में निमित्त है, और जैसे हम सेवा करते हैं तो साथ साथ पवित्रता, स्वच्छता और याद भी हम रखते हैं। तो जो होमवर्क है, तो जैसे दीदी ने कहा, हमें ध्यान रखना है कि लक्ष्य और लक्षण समान हो। तो ये एक बहुत विशेष महत्व का है, क्योंकि ये विशेष हमें हमारी जो धारणा है उनको व्यवहार में इंटीग्रेट करना है। तो कभी कभी हम सही कहते होंगे, परंतु कैसे हम कहते हैं वो सामने वाले को हर्ट करता है, दुखी करता है। तो बाबा का जो इंस्ट्रक्शन है कि तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, वो कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, सॉफ्ट बोलो, नम्रचित्त होकर बोलो। तो अगर हम आत्मिक स्मृति में हैं तो हम उसी तरह से व्यवहार करेंगे। तो वो कहती थी फरिश्ते स्थिति के बारे में। तो हमें खुद को प्रश्न करना है, अगर मैं फरिश्ता हूँ तो मैं कैसे चलूंगा, कैसे बोलूंगा, कैसे व्यवहार करूंगा, और कैसे मैं दूसरों को सुनूंगा। तो ये पूरा जो कम्युनिकेशन है बातचीत में, व्यवहार में, तो ये बहुत ही बड़ा विषय है। तो मतलब इसका मतलब है हम कभी कभी गिर जाते हैं और कैसे हम उसमें से बाहर आए। तो हम जानते हैं ऑफ कोर्स कि हम पुराने संस्कार होते हैं, तो कुछ एक संस्कार अच्छे होते हैं, कुछ एक अच्छे नहीं होते हैं। तो पूरा जो दृष्टिकोण है वो जैसे कि उसके आधार पर है, संस्कार के आधार पर है। कैसे मैं कुछ चीज समझता हूँ, ये सब कुछ फिल्टर होता है हमारे संस्कारों के द्वारा। संस्कार एक चश्मे की तरह जैसे काम करते हैं। जैसे कि आत्मा के अंदर एक अनुभव रिकॉर्ड हुआ है, तो अगर कोई अच्छा नहीं है, तो जिस तरह से मैं सोचूंगा, बोलूंगा, वो मेरा जो भूतकाल का अनुभव है उसके आधार से ही मैं सोचूंगा और देखूंगा। तो हमारा जो भूतकाल का अनुभव है वो हमें माहिती देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये बहुत ही अच्छा नहीं है, खराब है, विशेष कुछ एक कहानी है लोगों के व्यवहार के बारे में सर्कुलेट हो जाती है। तो लोग अर्थात जैसे कि माहिती एक जगह से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पास ऑन होती है, परंतु जैसे ही माहिती पास होती है तो वो बदलती जाती है, वो सेम नहीं रहती है। तो हमारे मन में व्यक्ति के बारे में विशेष लेबल्स होते हैं, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, मुश्किल है। तो हमारे मन में अगर ऐसी छवि है तो हम उस प्रकार से ही बोलेंगे। और कभी कभी हो सकता है हमारे पास वो स्पष्टता नहीं है, इसी वजह से होगा। हो सकता है कि हमारी एकाग्रता अच्छी नहीं है, इसीलिए जो भी कुछ सामने आता है उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है अंदर, मन के अंदर। तो हम कभी कभी अच्छे शब्द उपयोग नहीं कर पाते हैं बोलने में। तो
तो एक व्यक्ति है, वो बहुत जैसे एक नशे में था, स्पिरिचुअल। उसका नाम है टोनी। तो वो एक सेल्स पर्सन था। तो एक समय उसको समय पे आना था, और उसकी जो वाइफ है उसको चिंता हो गई। तो वो कहीं पर गई, तो उसने उसे वेट करने को कहा, और बाजू के रूम में दो बहनें कुछ टोली का पैकिंग कर रही थी, और उसने सुना इन लोगों को बात करने में। तो 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 वो कहती थी कि इसका टोन बहुत अच्छा था वगैरह। तो क्या हुआ कि तो वो सामने वाले का जो एक्सप्लेनेशन था वो नहीं सुनती थी। आप क्या कर रहे थे, आप क्यों नहीं आए वगैरह वो बोल रही थी। तो सो तो जैसे एक टोनी और टोली, मिसअंडरस्टैंडिंग शब्द की तो भाषा बहुत महत्व की है। तो हमें हम बीच में पॉज ले सकते हैं बोलने के समय, विशेष जब हम बोल रहे हैं तो हम चेक करें बोलने से पहले, फिर ही बोले। तो हमें ज़्यादा भी नहीं बोलना है, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलना है, और हमें बहुत ही नम्रता के साथ, रिस्पेक्ट के साथ बोलना है, बात करनी है। और जब भी कुछ हम निर्णय करें, हमें सबसे पहले हमें खुद को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। हम खुद समझे, सोचे और फिर बोले, फिर हम कम्युनिकेट करें। ये जो कम्युनिकेशन है, हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं? हम लोगों को समझने के लिए और हमारी बात को समझाने के लिए। तो हम सिर्फ खुद को समझाने के लिए कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो हमें बहुत याद रखना है कि जो भी हो रहा है उसे अच्छी तरह से समझना है। जैसे कि एक धारणा बेस्ड लीडरशिप कोर्स था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। I was talking the other day about the swing. दूसरे दिन जैसे एक स्विंग होता है, लोग जब कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कभी कभी गैप होता है उसमें। तो 5 चीजें हमें ध्यान रखनी है कम्युनिकेशन के संदर्भ में। एक है परिस्थिति, जो हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हम कुछ प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहे हैं, कभी कभी हमें संगठन में निर्णय करना होता है, तो जैसे एक परिस्थिति है। और मुझे ज्ञान का उपयोग करना है, तीसरी आंख का उपयोग करना है। जब हम कुछ समझाते हैं तो हमें परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आ जाना है। व्यर्थ वृत्ति हो जाती है। तो हमें परिस्थिति के बारे में बात करनी है, परिस्थिति के बारे में सुनना है, और तीसरी आंख के द्वारा और तीसरे कान के द्वारा भी सुनना है, माना बुद्धि। तो हम ज्ञान के दृष्टि से उसको देखेंगे, परिस्थिति को। दूसरा, कम्युनिकेशन में हम जो बात बोलते हैं वो सेंडर मैसेज बनाता है, मैसेज भेजने वाला, सेंडर अर्थात। सिर्फ हमें जो सत्य है, फैक्ट है, उसको देखना है। सिर्फ हम हमारे ओपिनियन के बारे में बात ना करें, जैसे कि ईमेल को भेजना, व्हाट्सएप करना। तो जो भी हम मैसेज भेजते हैं वो हम ट्रांसमिट करते हैं। हम कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वो सेंडर का कार्य होता है, भेजने वाले का।
तो उस समय हमें एंजेलिक स्टेज में रहकर भेजना है और फिर हम दूसरी साइड पे रिसीव करते हैं, जिसको रिसीवर कहा जाता है। अगर मैं मैसेज रिसीव करता हूँ तो मुझे चेक करना है कि मेरा दृष्टिकोण क्या है, कितना मैं फ्री हूँ, मुक्त हूँ, और बाबा मेरे साथ है। बाबा को साथ रख के इस इंफॉर्मेशन को, माहिती को एनालाइज करना है। तो मतलब जब हम संदेश मैसेज रिसीव करते हैं जो सेंडर ने भेजा है, हम बहुत हार्ड ना रहे, हम ओपनली एक मुक्त स्टेज में, मुक्त स्थिति में उसका एनालिसिस करें। हो सकता है वो हमें कुछ कहना चाह रहे हैं, और तो उसमें मैसेज जो होता है कभी कभी वो क्लियर नहीं होता है, इसमें दो मीनिंग हो जाते हैं, तो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो हम कई बार मैसेज को गलत रीति से समझ लेते हैं। तो कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो हमें, मैं मैसेज जो भेज रहा हूँ, ईमेल फॉर एग्जांपल, तो मुझे बहुत ही स्पष्ट सब्जेक्ट लिखना है। पहले पैराग्राफ में मुझे लिखना है कि मैसेज क्या है। तो जो भी इम्पोर्टेंट बात है उसको हाईलाइट करना है, और बहुत लंबा जंक ईमेल नहीं लिखना है, विस्तार नहीं करना है। और दूसरा, हमारे मैसेज का पर्पस क्या है। तो ये 5 चीजें हैं जो कम्युनिकेशन का परिणाम लाती है। तो जैसे कि हर बात में हमें धारणा को इंटीग्रेट करना है, हमारी फरिश्त स्थिति को उसमें इंटीग्रेट करना है। तो जितना मैसेज स्पष्ट होगा उतना रिसीवर को समझ में आएगा। और दूसरा, जो सेंडर होता है उसे प्रश्न करना है अपने आप को, मैं ये मैसेज क्यों भेज रहा हूँ, क्या जरूरी है। और मैं फॉर एग्जांपल मैसेज लिखता हूँ रिएक्शन के आधार पर। अगर वो स्ट्रॉन्ग मैसेज है तो मुझे फिर से पढ़ लेना है कि ये मैसेज में जो मैसेज आ रहा है वो वही है जो मैं भेजना चाह रहा हूँ। कभी कभी रिएक्शन में हम कुछ एक शब्द गलत लिख लेते हैं, जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं क्या कहूँगा, तो मेरे मन में जैसे ऐसी बातें चलती रहती है। तो जब तक आता है, तक मिलती है, तो हम जरूर कहेंगे, क्योंकि हमारे खुद के संस्कार होते हैं। हमें भी कभी कभी स्पष्टता नहीं होती है, मोटिवेशन नहीं होता है। तो हमें चेक करना है मैं क्या कहना चाहता हूँ और मैं क्या कहता हूँ, और जो सुनने वाले हैं वो क्या सुनते हैं। तो जो सुनने वाले हैं उसको भी समझ में आना चाहिए, उनके वो कैसे सुनेंगे इस मैसेज को, ये भी हमें पहले चेक कर लेना है। तो हो सकता है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो सामने वाले उसी तरह से नहीं सुनेंगे। नेक्स्ट है वो सुनते हैं और वो क्या समझते हैं। तो वो कंप्लीटली पूरा अलग समझेंगे जो आप समझाना चाहते हैं। तो हमें फाइनली जो व्यक्ति है वो जो समझते हैं वही वो अपने स्मृति में रखते हैं, और वो जो समझते हैं वो दूसरों को ट्रांसमिट करते हैं। तो अगर ये 6 चीजें हम सही करते हैं तो क्या आप, मतलब हम चेक कर सकते हैं सामने वाले से कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ क्या आप समझे, और आपकी तरफ से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ से जैसे कभी कभी समझ नहीं पाते हैं,
तो हमें कुछ एक बेसिक युक्ति इसको अपनाना है This is where we get mixed up. I'm sure all of you have got और mixed मुझे up. But I told you निश्चय है कि आप सभी and the person looks at you, what? We didn't कभी even कभी talk. व्यक्ति कहता है कि No, क्या I did say you were वो समझते नहीं है और कहते हैं कि क्या क्या मैं ये नहीं कहना चाहता था। तो हमें यहाँ पर ये प्रैक्टिस करनी है धारणा को। अगर कोई हमसे बात कर रहा है तो हम हमारे ही विचार को नहीं दर्शाते रहे, उनको भी सुनना है। तो मुझे कहना है कि हम पहले सुनेंगे और इस पल पे रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये तुरंत ही रिएक्ट करना वो एप्रोप्रिएट नहीं है। और जैसे कि हम फोन पर बात करें और तुरंत ही किसी को जवाब दे दे, जैसे कि मल्टीपल टास्किंग जो करते हैं ना, कभी कभी बात करते करते फोन पर हम बात कर रहे हैं और ईमेल पे लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है मल्टीटास्किंग, जैसे कि मोबाइल। हम हमारे फिंगर्स के द्वारा बात करते हैं मोबाइल में, शब्दों के द्वारा नहीं। तो हमें ये अभ्यास करना है कि मल्टीटास्किंग से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमें याद रखना है हम क्या कहना चाहते हैं, हम कैसे कहते हैं। तो दूसरी बात है कि अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, उसके साथ हम उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अगर हम अंदर से स्पष्ट है, बाबा की मदद मिलेगी, तो जो हम सुनेंगे वो भी स्पष्ट होगा। तो अभी हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। So Om Shanti everyone, Om Shanti. Transformation of old nature and old sanskars. Surrender the attitude of waste and wasteful vibrations. Some children make an effort and make their aim and qualifications equal according to the time, circumstances, and problems. However, extra attention now needs to be paid to make this natural and part of your nature. Whether you become an avyakt angel or incorporeal, the main basis of making these stages your constantly natural nature is to become egoless. In order to do this, surrender the attitude of waste and wasteful vibrations, and you will become a natural yogi who has an angelic nature. पुरानी नेचर व संस्कारों का परिवर्तन, व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो। समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण। कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को
समान भी बनाते हैं, लेकिन यह नेचुरल और नेचर हो जाए, उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। चाहे आकारी फरिश्ता, चाहे निराकारी, निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए। इसका मूल आधार है निरअहंकारी बनना। इसके लिए व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा कर दो, तो नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हो। ओम शांति।